अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं और सबसे पहला कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज द पेंटोज शुगर। वी डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द पेंटोज शुगर। उसके बाद वी डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। Now today we will discuss the structure of the nitrogenous bases. Now nitrogenous bases इनको हम nitrogenous bases का नाम क्यों देते हैं? Now these nitrogenous bases they are aromatic heterocyclic compounds. They are aromatic heterocyclic. Aromatic का मतलब है cyclic form में जो होगी. The compounds that occur in cyclic form. The compounds that occur in ring form. एंड हेटेरोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि जो दिस कार्बन का रिंग होता है उस कार्बन के रिंग में कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट भी होता है और वो क्या है, वो नाइट्रोजन होता है। और ये स्ट्रक्चर जो बन गई जिसके रिंग्स में ना कार्बन के अलावा नाइट्रोजन होता है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। Nitrogenous bases they are aromatic and heterocyclic, and these compound, that is these nitrogen bases, they are called as bases because they have the properties of chemical properties of a base. जो बेस होती है एसिड बेस बेस होती है, उस बेसिस में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है these प्रोटॉन उसको एक्सेप्ट करने की, they also show that property. Okay, that is why they are called as the nitrogenous bases. Where they contain the chemical compounds, which contain the cyclic heterocyclic compounds which contain the nitrogen and have the chemical properties of a base. That is why they are called as the nitrogenous bases. Now these nitrogenous bases, they are of two types. One nitrogen base is the purine. We have the purine nitrogenous bases. This is one, that is purine, and we have the pyrimidines. Purines नाम इनका छोटा है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर बड़ी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द प्यूरीन, इट्स अ डबल रिंगड स्ट्रक्चर, वन रिंग, अनदर रिंग, डबल रिंगड. दिस रिंग इज हेक्सामेरिक रिंग and this ring is the pentameric ring. Okay, now pentameric and hexameric, it doesn't mean it is 11 membered, it is only 9 membered because the carbon number 4 and carbon number 5 जो है, it is shared by both the rings. That is why it becomes the only 9 membered. So double ringed, 9 membered, और in 9 membered में there is presence of nitrogen at 4 positions. This is the nitrogen here at the position number 1, at position number 3, position number 7 and position number 9 there is presence of the nitrogen. Now this nitrogen at position number 9 is very important because this nitrogen, it participates in the formation of the bond with the pentose sugar. So purine ka nitrogen at position number 9 forms the bond with the pentose sugar. Okay, now these purines, we have two types of purines. One is the adenine, abbreviated as A, and guanine, abbreviated as the G. Now जिस स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई, this is the basic structure. This is the basic structure of the purines. Now इस बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम कार्बन नंबर 6 पर यहाँ पर एमाइन ग्रुप लगाएं, NH2 लगाएंगे, यहाँ पर कार्बन नंबर 6 पर अगर NH2 लगाएंगे, एमाइन ग्रुप लगाएंगे यहाँ पर, तो दिस स्ट्रक्चर बिकम्स द एडेनिन. सो एडेनिन इज 6 एमाइनो प्यूरिन. ओके, आप गावानिन की बात करेंगे. अगर इस स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर इस स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 पर एमाइन ग्रुप लगेगा और कार्बन नंबर 6 पर ऑक्सीजन होगा, अगर यहाँ पर एमाइन ग्रुप होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, तब जाके ये स्ट्रक्चर बनेगी गावानिन. सो गावानिन इज 2 एमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन. ओके, अब दूसरी बात, यहाँ दूसरे साइड में आते हैं. दिस इज द पायरिमिडीन. अब पायरिमिडीन्स नाम इनमें लिखने में बड़ा है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू प्यूरिन्स छोटी है. अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, अगर इसको आप कंपेयर करेंगे, दिस इज डबल रिंगड, दिस इज सिंगल रिंगड. द सिंगल रिंगड पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंगड एंड यहाँ पर दिस इज ओनली 6 मेंबर्ड रिंग. यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 6 मेंबर्ड रिंग. द सिंगल रिंगड एंड 6 मेंबर्ड. The nitrogen जो है इसमें, here is the presence of nitrogen at 2 positions, that is position number 1 and position number 3. Position number 1 and position number 3. There is presence of the nitrogen. Nitrogen is present at position
1 and position 3. This is the nitrogen at two positions, that is position 1 and position 3. Now the nitrogen at position 1, this is important nitrogen, this nitrogen is important because it forms the bond with the pentose sugar. Pyrimidenes का nitrogen at position 1 participates in the bond formation with pentose sugar, while as in case of purines का nitrogen at position number 9 participates in the formation of bond with the pentose sugar. Okay, now pyrimidines हमारे पास तीन तरह की है. ये pyrimidine की basic structure है. अब accordingly we will have three types of pyrimidines. One is thymine, abbreviated as T. Now thymine is 2,4-dioxy. 2,4-dioxy, that is 2 carbon number 2 पर oxygen, fourth पर भी oxygen, and 5 methyl. तो यहाँ पर अगर 5 पर कार्बन नंबर 5 पर अगर मिथाइल ग्रुप होगा तब जाके ये बनेगा थाइमीन. सो थाइमीन इज 2,4-dioxy 5-methyl pyrimidine. ओके, तो इसी तरह से साइटोसिन जो है, साइटोसिन एब्रिवेटेड एज सी. साइटोसिन क्या है? 2-ऑक्सी. ये 2-ऑक्सी है तो ऑक्सी यहाँ पर 2-ऑक्सी, कार्बन नंबर 2, देयर इज ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 2-ऑक्सी. 4 एमाइनो, अगर यहाँ पर एमाइन ग्रुप होगा, यहाँ पर अगर एमाइन ग्रुप होगा कार्बन नंबर 4 पर, तो इट विल बिकम दिस साइटोसिन. सो साइटोसिन इज 2-ऑक्सी 4-amino pyrimidine. Then we have the uracil. Three types of pyrimidines. Uracil abbreviated as U. This is 2,4-dioxy. 2,4-dioxy. इसमें कार्बन नंबर 2 पर भी ऑक्सीजन एंड कार्बन नंबर 4 पर भी ऑक्सीजन होता है. It becomes this uracil. Now in case of DNA में हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस है. DNA में एडेनिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर गावानिन, C फॉर साइटोसिन एंड T फॉर थाइमीन. RNA में we have adenine, guanine, cytosine and uracil. Therefore, in case of RNA, thymine is replaced by U. RNA में थाइमीन नहीं होता है, उसके बदले U होता है. DNA में यूरेसिल नहीं होता है, उसके बदले थाइमीन होता है. बाकी तीन सेम है इन बोथ द केसेस. ओके, तो आपने देख लिया स्ट्रक्चर. वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ, दैट इज वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस pentose sugar. We have seen the structure of a phosphate group. We have seen the structure of this nitrogenous bases. Now इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे, इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कराएंगे, तो we will get the न्यूक्लियोटाइड. तो चलिए हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं. तो यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम तीनों को एक साथ रखेंगे. ओके, आपको याद आ रहा होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर पेंटोस शुगर. दिस इज पेंटोस शुगर. यहाँ से हम कोई नाइट्रोजनस बेस बनाएंगे. चलो नाइट्रोजनस बेस यहाँ से कोई बनाएंगे हम. ओके, पायरिमिडीन का बनाया हमने यहाँ पर, और यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप. This is the phosphate group. Okay, इसको हम यहाँ से थोड़ा रब करेंगे ताकि क्लियर हो जाएगा. ओके, सो हमने तीनों को एक साथ रखा यहाँ पर. This is pentose sugar, nitrogenous base, pyrimidine and the phosphate group. अब चलिए देखते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं. अब इस साइड में अगर हम देखेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5. अब पेंटोस शुगर के नंबरिंग को अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसमें हम प्राइम लगाते हैं. दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम. यहाँ पर भी नंबरिंग हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो यहाँ पर प्राइम लगाने की, सो इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट द नंबरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस and the numbering of the pentose sugar, we add the prime to the numbering of the pentose sugar. Pentose sugar की numbering को हम prime लगाते हैं. That is 1 prime, carbon number 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime and 5 prime.
ये प्राइम हम पेंटोस शुगर में लगाते हैं और यहाँ पर हम ऐसे ही रखते हैं एज कार्बन एट पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3 एंड पोजीशन 6। ओके, तो डिफरेंशिएट कर नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए पेंटोस शुगर को हम दिस प्राइम लगाते हैं। अब ये दो जब कनेक्ट हो जाएंगे, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब कनेक्ट होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड बनने के लिए तो बॉन्ड बनेगा। चलिए देखते हैं कि बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो जो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, आपने देख लिया कि नाइट्रोजनस पेंटोस शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है, 1 प्राइम का कार्बन जो है, इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और पायरिमिडीन का नाइट्रोजन एट पोजीशन 1, नाइट्रोजन एट पोजीशन 1, वहां पर हाइड्रोजन है उसके साथ, अगर आपको याद आ रहा होगा अभी हमने देखा वो। तो ये यहाँ से हाइड्रोजन इसका और इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये दिस रिएक्ट करेंगे और देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लॉस होगा। तो मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करूँगा, आई रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन ऑफ पेंटोस शुगर और कार्बन नंबर 1 प्राइम ऑफ द पेंटोस शुगर, इनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, is called as N-glycosidic bond। अब इसको N-glycosidic bond क्यों बोलते हैं? अब आपको पता है कि जब भी ग्लूकोज जब भी बॉन्ड बनाता है तो हम वर्ड करते हैं यूज ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिस का नाइट्रोजन बेसिस का नाइट्रोजन जो होता है वो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हिस्सा लेता है पेंटोस शुगर के साथ। That is why it is called as N-glycosidic. N means the nitrogen of the pentose sugar. Okay, and glycosidic is the bond that is formed by glucose. So N-glycosidic bond is here. So the pentose sugar and their nitrogenous base, they are connected by the N-glycosidic bond. अब यहाँ पर आएंगे कि किस तरह से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है विद द पेंटोस शुगर। अब पेंटोस शुगर का जो 5 प्राइम कार्बन है, 5 प्राइम कार्बन है, इस पर OH ग्रुप यहाँ पर, और फॉस्फेट ग्रुप में फॉस्फोरिक एसिड में वी हैव द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH ग्रुप्स होते हैं। अब एक वन ऑफ द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ फॉस्फेट, इट कनेक्ट्स विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ 5th कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर। 5th कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर का हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिएक्ट करेगा विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द फॉस्फेट। और यहाँ से ये OH ये वाटर की सूरत में बाहर निकले, यहाँ से वाटर को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ये O हो गया और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो दिस बॉन्ड हियर, इस बॉन्ड की वजह से फॉस्फेट कनेक्ट हो गया विद द पेंटोस शुगर। सो पेंटोस शुगर कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप के साथ कनेक्ट होता है और कार्बन नंबर 1 के साथ पेंटोस शुगर यहाँ पर कनेक्ट हो गए। Now this bond is not called as the phosphodiester bond। क्यों इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बोलते? बिकॉज यहाँ पर डाई वाली कंडीशन कुछ भी नहीं है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, ये कैसे बनता है, हम आगे इस पर बात करेंगे कि किस तरह से बनता है। तो इस तरह से हमारे पास एक दिस न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स अगर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस इसके साथ कनेक्ट की। अब जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो गई, वैसे ही हमारे पास वी हैव 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर यहाँ पर एडेनिन ऐड होगा सो वी विल हैव द डीऑक्सी। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया ये, इस न्यूक्लियोटाइड को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की 4 टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन दिस नाइट्रोजनस बेस कौन होगी, उस बुनियाद पर हमारे पास 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर यहाँ पर एडेनिन होगा तो वी विल कॉल इट डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीएडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर यहाँ पर दिस गवानिन होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज डीऑक्सीगवानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पर थाइमीन होगा तो विल कॉल इट डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह से अगर साइटोसिन होगा तो विल कॉल इट द डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ओके, थैंक यू।